Bismillahirrahmanirrahim. Today's our topic of discussion is rheology. So first of all, there is introduction and understanding of viscosity of liquid solution and dilute and concentrated colliding system has both practical and theoretical value. Scott Blair too recognized the importance of rheology in pharmacy and suggested its application in formulation and analysis of such pharmaceutical products as emulsions, pastes, suppositories, and tablet coatings. स्कॉट ब्लेयर टू इसने सबसे पहले जो रियोलॉजी की इम्पोर्टेंस है वो फार्मेसी के अंदर रिकग्नाइज करवाई थी कि किस तरह जो रियोलॉजी है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फार्मेसी के अंदर. डेफिनेशन इसकी देखेंगे. जो वर्ड रियोलॉजी है ये ग्रीक वर्ड से आया है रियो एंड ओलॉजी. रियो का मतलब होता है टू फ्लो एंड लोगोस मीनिंग science. The term rheology from the Greek word rheo to flow and logos science was suggested by Bingham and Crawford. Bingham और Crawford ने सबसे पहले इस वर्ड की सजेशन दी थी रियोलॉजी की. और रियोलॉजी की डेफिनेशन यही है कि लिक्विड्स का फ्लो और deformation of matter under stress. Rheology is the study of flow of liquids and deformation of matter under stress. Next, here are the fundamentals of rheology. So, basically there are two main fundamentals of rheology: manufacturing of dosage form and handling of drugs for administration. जब हम कोई भी मटेरियल की प्रिपरेशन करवाते हैं उनकी मिक्सिंग के लिए, उनकी फ्लो के लिए, उनकी फिलिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो है रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करें ताकि उनकी जो फिलिंग है, मिक्सिंग है, उनको अच्छी तरह से स्टडी किया जाए कि कौन सा इक्विपमेंट जो है हम उसके लिए सेलेक्ट करें. आइदर उसके लिए मिक्सर ठीक रहेगा या फिर मोटर या पेस्टल ठीक रहेगा. मटेरियल्स अंडरगो सच प्रोसेस सच एज mixing, flowing through pipes, filling into containers, etc. Flow-related changes influence the selection of mixing equipments. आगे हमारे पास आ जाता है handling of drugs for administration. This is the injectability of medicine, the pouring of liquids from containers, extrusion of ointments from tubes, all depend on changes in flow behavior of dosage form. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूटनियन लॉ ऑफ फ्लो. न्यूटन ने एक लॉ दिया था जो कि क्या था उसको हम आगे फर्दर डिटेल में स्टडी करते हैं. उसके अकॉर्डिंग जो इस लॉ को मानेंगे वो न्यूटनियन फ्लूइड्स होंगे और जो उस लॉ को नहीं मानेंगे वो नॉन न्यूटनियन फ्लूइड्स होंगे. Consider a block of liquid consisting of parallel plates of molecules. If the bottom layer is fixed in the place and the top of the plane liquid is moved at constant velocity, each lower layer will move with a velocity directly proportional to its distance from stationary bottom layer. So here is the molecule. You see it's a square shape and its bottom layer, this one, has been fixed. एंड इट्स अपर लेयर, इसकी अपर लेयर के ऊपर एक यूनिट एरिया है उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. यानी कि एरिया के प्लेन के पैरेलल फोर्स हमने अप्लाई की है इसलिए हम इसको शेयर स्ट्रेस कहेंगे. हमने क्या किया, एक मॉलिक्यूल है उसके ऊपर शेयर स्ट्रेस अप्लाई किया उसके अपर लेयर के ऊपर. उसकी जो बॉटम लेयर है दैट इज फिक्स्ड फ्रॉम द सरफेस, ये मूव नहीं कर रही. हम सिर्फ अपर सरफेस के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से इसने वेलोसिटी v के साथ जो है वो मूव कर रहा है. डी वी यहाँ पे वेलोसिटी डिफरेंस है और डी आर यहाँ पे डिस्टेंस का डिफरेंस है इस फर्स्ट लेयर का लास्ट लेयर के साथ या उस लेयर का जिसके ऊपर आपने स्ट्रेस अप्लाई किया. रेट ऑफ शेयर, the ratio of difference of velocity dv between two planes of liquid separated by distance dr is the velocity gradient or rate of shear dv over dr. मतलब
ये हमारे पास जो वेलोसिटी डिफरेंस था इसको हम डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस डिफरेंस के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा रेट ऑफ शेयर या वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको हम जी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेस की डेफिनेशन है, द फोर्स पर यूनिट एरिया required to bring about the flow is called the shearing stress and is given by symbol F। ये हमारे पास shear stress का फॉर्मूला है, F is equal to F prime over A, यानी कि shear stress applied to unit area। Newton was the first to study flow properties of liquids in quantitative way। न्यूटन ने सबसे पहले जो है इनकी इन फ्लूइड्स की क्वांटिटेटिव स्टडी की थी। So according to Newton, higher the viscosity of a liquid, the greater is the force per unit area shearing stress required to produce a certain rate of shear। अगर हमारे पास so according to Newton, higher the viscosity of a liquid, greater is the force per unit area shearing stress required to produce a certain rate of shear। Okay? अगर हमारे पास एक दो लिक्विड्स हैं, एक की विस्कोसिटी ज़्यादा है, एक की विस्कोसिटी कम है, तो जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है उसके ऊपर हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी टू ब्रिंग अबाउट सर्टेन रेट ऑफ शेयर। ठीक है, उसके ऊपर उसको अगर हम चाहते हैं कि वेलोसिटी v वेलोसिटी के साथ मूव करे, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है तो उसके ऊपर हमें स्ट्रेस भी ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। Hence, the rate of shear is directly proportional to shearing stress। F prime over A is proportional to dV over dr, यानी कि shearing stress is directly proportional to rate of shear। तो जब हम इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास एक कोएफिशिएंट आएगा जिसे हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी कि ईटा। विस्कोसिटी क्या है? इट इज defined as frictional effect between different layers of a flowing fluid। It is the coefficient of viscosity and is calculated as eta is equal to F over G, and this is derived from the Newton's law, that is shearing stress is proportional to shearing stress is proportional to rate of shear। and यहाँ से हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे और हमारे पास आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी कि ईटा। और ईटा के लिए जो है हमारे पास फार्मूला डेट इज एफ ओवर जी, यानी कि शेयरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ शेयर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं विस्कोसिटी की डेफिनेशन। हमने देख ली कि विस्कोसिटी क्या है, एक फ्लोइंग फ्लूइड की जो डिफरेंट लेयर्स है उसके दरमियान जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है, दैट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी हमारे पास पॉइस और डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी आती है, दैट इज फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी जो है वो विस्कोसिटी के ऑपोजिट है। विस्कोसिटी में हम उसकी विस्कसनेस, गाढ़ापन देखते हैं, जबकि फ्लूइडिटी में हम देखते हैं कि वो कितनी उसके अंदर एबिलिटी है कि वो इजीली फ्लो कर सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्लो, कितने टाइप के फ्लो आते हैं। तो बेसिकली टू टाइप्स के फ्लो हैं हमारे पास, दैट इज न्यूटोनियन फ्लो एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लो।
A Newtonian fluid is a fluid whose stress versus rate of shear curve is linear and passes through the origin. The constant of proportionality is known as viscosity. Viscosity of such system remains constant, and the system is known as Newtonian system. रियोग्राम ऐसा ग्राफ है, ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो shear स्ट्रेस और रेट ऑफ shear के दरमियान हम प्लॉट करते हैं. ऐसा ग्राफ जो हम रेट ऑफ shear और shearing स्ट्रेस के दरमियान प्लॉट करते हैं. तो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए या न्यूटोनियन फ्लो के लिए ये ग्राफ जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा. ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि हम जितना मर्जी इसके ऊपर shear स्ट्रेस अप्लाई कर लें, इसकी जो विस्कोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहती है. फॉर एग्जांपल वाटर एंड ऑयल्स. वाटर और ऑयल के ऊपर आप जितना मर्जी स्ट्रेस अप्लाई करें, उसकी जो विस्कोसिटी है वो कांस्टेंट ही रहेगी. उसकी विस्कसनेस पे कोई फर्क नहीं आता. वाटर है हमारे पास, क्लोरोफॉर्म है, कैस्टर ऑयल, इथाइल अल्कोहल, ये ऐसे फ्लूइड्स हैं जो कि न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं और इनके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करने से इनकी विस्कोसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लो. A non-Newtonian flow is defined as one for which the relation between F and G is not linear. यानी कि हमारे पास ऐसा फ्लो है जिसके अंदर F और G यानी कि shear stress versus rate of shear प्लॉट अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं आती है. इनकी विस्कोसिटी है जो है वो चेंज होती है. द सिस्टम इज नोन एज नॉन न्यूटोनियन सिस्टम एंड द विस्कोसिटी ऑफ सच सिस्टम वेरीज एज द shearing stress varies. It can be seen in liquids and in solids of heterogeneous dispersion such as emulsion, suspension, colloids and ointments. ये सब हमें पता है कि फार्मास्यूटिकली कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. फार्मास्यूटिकल इमल्शन, सस्पेंशन, कोलाइड्स, ऑइंटमेंट्स वगैरह, और ये सब जो प्रॉपर्टीज़ हैं, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, वो इनकी जो मेडिसिनल बिहेवियर है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की भी आगे फर्दर 3 टाइप है. प्लास्टिक फ्लो, स्यूडोप्लास्टिक फ्लो एंड डायलेटेड फ्लो. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लास्टिक फ्लो, in which the curve does not pass through the origin. The substance behaves initially elastic body and it fails to flow when the less amount of stress is applied. As the stress increases, it leads to non-linear increase in shear rate, but after that curve is linear. The linear portion extrapolated intersects the x-axis at point called as yield value. So, plastic flow shows Newtonian flow above yield value. The curve represents plastic flow. Such materials are called Bingham bodies. सबसे पहले हम ग्राफ देख लेते हैं इसका. बेसिकली हम इसको रियोग्राम कहेंगे. जब हम रेट ऑफ शेयर और शेयरिंग स्ट्रेस के दरमियान किसी भी फ्लूइड के लिए, किसी मटेरियल के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम इसको रियोग्राम बोलेंगे. प्लास्टिक बॉडीज़ के लिए ये जो रियोग्राम है, नंबर 1 इसका पॉइंट कि ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता. ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता. एक्स एक्सिस पे आएंगे और फिर ये शेयरिंग स्ट्रेस जब हम अप्लाई करते जाएंगे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पे इसके अंदर रेट ऑफ शेयर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा और ये एज ए कर्व स्टार्ट होगा. स्टार्टिंग में ये एक कर्व है लेकिन आगे जाके ये स्ट्रेट लाइन आ जाती है, सिमिलर टू दैट ऑफ न्यूटोनियन फ्लो. सो इनिशियली जो बॉडी है वो बिहेव करती है एज एन इलास्टिक बॉडी. जब हम इसके ऊपर शेयर स्ट्रेस की अमाउंट को इंक्रीज करते जाएंगे तो बाद में ये बॉडी जो है वो न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह बिहेव करेगी. अगर हम इस ग्राफ को यहाँ से एक्स्ट्रापोलेट करें स्ट्रेट लाइन को तो ये एक्स एक्सिस पे आके इंटरसेक्ट करेगा. जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा उसे हम कहेंगे यील्ड वैल्यू या फिर एफ.
स्यूडोप्लास्टिक मटेरियल्स को हम बिंगम बॉडीज भी कहते हैं। सी दीज आर द बिंगम बॉडीज। तो इनिशियली क्या होता है कि जो हमारे पास प्लास्टिक मटेरियल होता है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, तो उनके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करने से जो कोहेसिव या अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो इजीली ब्रेक नहीं होती। यहाँ पे हमने स्ट्रेस अप्लाई किया लेकिन इसके अंदर कोई भी रेट ऑफ शेयर प्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हमने शेयरिंग स्ट्रेस की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा की है, अमाउंट ज़्यादा की है, तो उनके अंदर क्या है कि रेट ऑफ शेयर प्रोड्यूस हुआ और बाद में उन्होंने वो बिहेव कर रही है एज ए न्यूटेनियन फ्लूइड्स। इसकी एग्जांपल में है जिंक ऑक्साइड इन मिनरल ऑयल और सर्टेन पेयर्स हमारे पास ये फ्लो शो करती है। आगे आ जाते हैं स्यूडोप्लास्टिक फ्लो। मैनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स लिक्विड डिस्पर्शंस ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक गम्स शो स्यूडोप्लास्टिक फ्लो। एक चीज़ इसके लिए जो फार्मूला है वो हमारे पास मॉडिफाई हो जाएगा। विस्कोसिटी को हम यहाँ पे यू से शो कर रहे हैं और इधर F माइनस एफ ओवर जी हमें पता है रेट ऑफ शेयर है, जी हमारे पास रेट ऑफ शेयर है और F माइनस एफ हमने क्यों किया, क्योंकि अगर हम ग्राफ पे आए सी, ये हमारे पास F है और ये हमारे पास G है। यहाँ पे अगर हम F अप्लाई कर रहे हैं तो यानी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसके अंदर कोई भी रेट ऑफ शेयर जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, इसलिए हम F में से ये जो F की वैल्यू है इसको माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्यूडोप्लास्टिक फ्लो। Many pharmaceutical products, liquid dispersions of natural and synthetic gums show pseudoplastic flow. In this curve passes from a region. As the shear stress increases, shear rate increases, but this increase is not linear. With the increase in shearing stress, the disarranged molecule orient themselves in a direction of flow, thus reducing friction and allow a greater rate of shear at each shear stress. स्यूडोप्लास्टिक फ्लो के अंदर हमारे बहुत से लिक्विड डिस्पर्शंस आ जाती हैं, गम्स आ जाती हैं। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं पॉलीमर्स इन वाटर। हमने वाटर के अंदर पॉलीमर ऐड किया तो इनिशियली क्या था कि जो पॉलीमर्स हैं वो डिसअरेंज्ड फॉर्म में वाटर के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन जब हमने इनके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई की, जो पॉलीमर्स हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने खुद को ओरिएंट कर लिया इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। पहले क्या था कि जो पॉलीमर्स थे वो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर डिसअरेंज्ड फॉर्म में थे, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स दैट वर इन डिसअरेंज्ड और डिसऑर्डर्ड मैनर। लेकिन फिर बाद में हमने जब फोर्स अप्लाई की तो इन मॉलिक्यूल्स ने, वाटर मॉलिक्यूल्स ने और पॉलीमर्स ने खुद को वाटर के फ्लो के अलोंग या डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अलोंग अपने आप को अरेंज किया, जिसकी वजह से जो वाटर की लेयर्स होंगी इनके दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम हो जाएगी। फ्रिक्शनल फोर्स कम होने की वजह से विस्कोसिटी कम हो जाएगी। So pseudoplastic flow is also known as shear thinning system as the viscosity is decreased upon shearing. And here is one more point, that is some of the solvent associated will be released resulting in decreased viscosity. जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के अंदर इंट्रैप हुए होंगे, स्ट्रेस अप्लाई करने से वो भी निकल जाएंगे और इस तरह जो वाटर की जो लेयर्स हैं वो इजीली फ्लो करेंगी, उनके अंदर फ्रिक्शनल इफेक्ट कम हो जाएगा और विस्कोसिटी कम हो जाएगी। सो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज आल्सो कॉल्ड एज shear thinning system। डियाग्राम हम देख लेते हैं इसका कि हमने शेयर स्ट्रेस और रेट ऑफ शेयर के दरमियान अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये हमारे पास कर्व आ रही है। इस कर्व का मतलब यही है कि शेयर स्ट्रेस अप्लाई करने से विस्कोसिटी
जो है वो चेंज हो रही है, विस्कोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। नॉन लीनियर डिक्रीज इन विस्कोसिटी। इसके अंदर जो फॉर्मूला है वो सेम जिस तरह न्यूटोनियन के अंदर होता है, एफ एन इज इक्वल टू ईटा जी। इसके अंदर सिर्फ ये एन वाली जो टर्मिनोलॉजी है इसका इजाफा हुआ है, बाकी सब कुछ एफ इज इक्वल टू ईटा जी। एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ गिवन एक्सपोनेंट्स। अगर एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो हमारे पास जो मटेरियल होगा वो स्यूडो प्लास्टिक होगा। एन की वैल्यू जितनी ज़्यादा 1 से ग्रेटर होगी उतना ही मटेरियल स्यूडो प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा। न्यूटोनियन फ्लो के केस में एन जो है वो 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डायलेटेंट फ्लो, दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लो। इसके अंदर आ जाती है सर्टेन सस्पेंशन विद हाई परसेंटेज ऑफ डिस्पर्स्ड सॉलिड्स शो एन इंक्रीज इन रेजिस्टेंस टू फ्लो विद इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ shear. Such system increase in volume when sheared, such system is called dilatant flow. यानी कि जब हम इनके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो इनकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। इनको हम shear थिकनिंग सिस्टम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब इनके ऊपर shear स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो इनकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। नॉन लीनियर इंक्रीज इन रेट ऑफ shear, this leads to this leads particles to move related to one another at lower shear rate. ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर हमारे पास जो डिस्पर्शन है, लिक्विड डिस्पर्शन के अंदर ऐसी डिस्पर्शन है जिसके अंदर 50% से ज़्यादा जो है वो हमारे पास सॉलिड मटेरियल आ जाता है। तो एट रेस्ट flows back less void volume, sufficient vehicle, low consistency। यानी कि जब हमने इसके ऊपर shear स्ट्रेस अप्लाई नहीं किया तो ये सॉलिड पार्टिकल्स या सॉलिड जो इसके अंदर कंटेंट है वो ज़्यादा है और लिक्विड वाला कम है। मीडियम व्हीकल का मतलब यहाँ पे मीडियम है, डिस्पर्शन मीडियम, वो कम है और डिस्पर्स्ड फेज ऑफ सॉलिड मटेरियल वो ज़्यादा है। एट रेस्ट जो होगा पैकिंग जो होगी वो क्लोज होगी, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के करीब करीब होंगे, क्लोज पैकिंग होगी। लेस वॉइड वॉल्यूम, इनके दरमियान जो फ्री स्पेस है वो कम होगी। और सफिशिएंट व्हीकल, मीडियम जो है वो सफिशिएंट होगा और इसकी विस्कोसिटी कम होगी। लो कंसिस्टेंसी मीन्स लो विस्कोसिटी। लेकिन जब हमने इसके ऊपर shear स्ट्रेस अप्लाई किया, shear स्ट्रेस अप्लाई करने से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हो गए हैं। अब डिस्पर्शन मीडियम तो हमारे पास उतना ही है ना जितना यानी कि shearing स्ट्रेस अप्लाई करने से पहले था। ठीक है, तो क्या होगा जब सॉलिड पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे तो जो मीडियम होगा वो इनसफिशिएंट होगा, लुब्रिकेशन नहीं होगी ना। जब लुब्रिकेशन नहीं होगी तो फ्रिक्शनल इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। फ्रिक्शनल इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ओपन पैक या हाई वॉइड वॉल्यूम, ठीक है, स्पेस जो है वाइड स्पेस जो है वो ज़्यादा हो गई है। इनसफिशिएंट व्हीकल यानी कि मीडियम जो है वो हमारे पास इनसफिशिएंट हो गया है, उनकी लुब्रिकेशन नहीं अच्छी तरह से हो रही, जिसकी वजह से जो विस्कोसिटी है, फ्रिक्शनल इफेक्ट है वो ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट वही सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके लिए एक भी फॉर्मूला सेम, एफ एन इज इक्वल टू ईटा जी। Shearing stress के लिए जो formula है, एफ एन इज इक्वल टू ईटा जी एंड एन here is the number of exponents and here the value of n would be less than 1। ठीक है, विस्कोसिटी इनकी ज़्यादा हो जाती है आफ्टर अप्लाइंग shearing stress, जबकि n की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगी। इसका जो रियोग्राम है डायलेटेंट फ्लो के लिए, you can see the curve here, shearing stress or shear rate. Again the rheology showing that
By applying shearing stress, the rate of shear produces and the viscosity increases non-linearly. एग्जाम्पल्स हमारे पास आ जाते हैं इसके अंदर deflocculated suspensions containing 50% of solid content, concentrated titanium dioxide suspension and paste. Here is the general view of three non-Newtonian behavior. The first one is plastic flow, second one is pseudoplastic, and the third is dilution. Plastic flow is also known as Bingham bodies. Pseudoplastic is also known as shearing thinning because viscosity is decreases upon applying shear stress, and the diluted flow is called shear thickening system because viscosity increases upon shear stress. Okay. नेक्स्ट इसकी वही एग्जांपल्स बताई हुई हैं. ये एक जनरल से डिफरेंस है तीनों के अंदर. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थिक्सोट्रॉपी. Thixotropy is a non-Newtonian time-dependent behavior. It is defined as isothermal, comparatively slow recovery of a system on standing whose consistency is lost upon shearing. यानी कि जेल स्टेट में हमारे पास एक सिस्टम है, हमने इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया. स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद उसकी जो कंसिस्टेंसी है या जो विस्कोसिटी है वो डिस्टर्ब हो गई है या लॉस्ट हो गई है. और इसके अंदर इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर जो है वो हमने सेम रखा है आइसोथर्मल. ओके, आइसोथर्मल मीन्स द टेम्परेचर इज सेम. Isothermal and comparatively slow recovery of the system on standing whose consistency is lost upon shearing. यानी कि ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर हमने स्ट्रेस अप्लाई किया वो जेल से सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, क्या होगा कि उसकी विस्कोसिटी जो है वो कम हो गई है, लेकिन जब हमने उसको पड़ा रहने दिया ऑन स्टैंडिंग, ठीक है, तो दोबारा से जेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो पहले जैसी नहीं रहती. फॉर एग्जांपल, पहले अगर उसकी 100 पॉइंट्स थी तो सोल्यूशन फॉर्म में उसकी 50 पॉइंट्स हो जाएगी. दोबारा से जब वो जेल स्टेट के अंदर आएगा तो वो 100 नहीं होगी, वो 90 पॉइंट्स होगी. whose consistency is lost upon shearing. It is a shear thinning system. When agitated and kept aside, it is expected to return its original state of fluidity but takes longer time to recover compared to the time taken for एजिटेशन. यानी कि एजिटेशन तो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है, एजिटेट करके हमने उसको जेल से सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन दोबारा से इसको जेल की फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम रिक्वायर है. Thixotrophic behavior can be shown by plastic and pseudoplastic system. जब जेल स्टेट में होता है तो जो मटेरियल के जो पार्टिकल्स के कंटेंट होते हैं आपस में तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं. मल्टी पॉइंट कंटेंट्स या हाई कंसिस्टेंसी. हाई कंसिस्टेंसी मतलब हाई विस्कोसिटी. उसके बाद जब हम उसको एजिटेट करते हैं तो वो जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, उनकी कंसिस्टेंसी कम हो जाती है, विस्कोसिटी कम हो जाती है. ठीक है, तो हमारे पास सोल्यूशन स्टेट आ जाती है जो कि हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट भी होती है. पार्टिकल कंटेंट फॉर्म ड्यू टू ब्रोनियन मोशन यानी कि जेल स्टेट. ठीक है, एजिटेट करने के बाद जब हमने इसको पड़ा रहने दिया ऑन स्टैंडिंग तो ब्रोनियन मोशन से पार्टिकल्स के जो कॉन्टेंट्स हैं वो दोबारा से डेवलप हो जाते हैं और जो मटेरियल है वो दोबारा से जेल स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. एग्जाम्पल इसके अंदर हमारे पास आ जाती है केचप, मायोनीज, योगर्ट, पेस्ट एक्सेट्रा. नेक्स्ट अगर हम इसके न्यूटोनियन जो थिक्सोट्रॉपी के रियोग्राम की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्यूडोप्लास्टिक को देख लेते हैं कि हमने इसके ऊपर शेयर स्ट्रेस अप्लाई किया. शेयर स्ट्रेस अप्लाई करने से इसकी विस्कोसिटी जो है वो चेंज हो रही है और रेट ऑफ शेयर इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है. इस पॉइंट पे आके इस पॉइंट पे आके हमने इसको छोड़ दिया तो ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, लेकिन ये ग्राफ दोबारा से जो है वो ओरिजिन की तरफ नहीं आ रहा है. इसका मतलब ये कि इसकी जो विस्कोसिटी है वो लॉस्ट हो जाएगी, जेल से जेल में आ जाएगा या जो इनिशियल स्टेट थी दोबारा से इसी में आ जाएगा, लेकिन इसकी विस्कोसिटी जो है वो पहले जैसी नहीं रहेगी. न्यूटोनियन के अंदर हमारे पास सिंपल यही अपवर्ड और डाउनवर्ड ग्राफ सेम ही होंगे बिकॉज वो हमारे पास न्यूटोनियन है. न्यूटोनियन के अंदर विस्कोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, इससे ये ग्राफ जहाँ से शुरू हो रहा था वहीं पे
एंड हो रहा है। प्लास्टिक के लिए ठीक है, शेयर स्ट्रेस अप्लाई करने से शेयर रेट प्रोड्यूस हुआ, अगेन हमने उसको छोड़ दिया तो ब्राउनिंग मोशन से कंटेंट दोबारा से डेवलप हो, उसकी जो कंसिस्टेंसी है ठीक है वो तकरीबन पहले की तरह फिर से यानी कि वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाए, लेकिन उसकी जो विस्कोसिटी है वो थोड़ी सी लॉस्ट हो जाएगी। थिक्सोट्रॉपी इन फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह थिक्सोट्रॉपी अपना रोल प्ले कर रही होती है। Creams and ointments. Formulations should spread easily on skin and retain its original form on the removal of stress in order to adhere. जब कोई भी ऑइंटमेंट या क्रीम वगैरह स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करने से जो है वो शेयर रेट प्रोड्यूस होता है, इसकी विस्कोसिटी चेंज होती है। लेकिन जब हम स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद उसको छोड़ देते हैं तो वो इजीली एडियर हो जाता है हमारी स्किन के साथ। इंजेक्शंस, transformation from gel to sol when passing through hypodermic needle, then revert to gel at the site of intramuscular junction here injection where the drug is slowly released in the body. अब कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं कि जिनको हमने स्लोली रिलीज करवाना होता है बॉडी के अंदर, तो वो हम जेल की फॉर्म में देते हैं। जेल की फॉर्म में जब हम दे देते हैं तो जब हम इंजेक्ट करते हैं तो वो जेल जो है जब हम उसके ऊपर शेयर स्ट्रेस अप्लाई करके बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो वो जेल से सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन मसल के अंदर जाके वो दोबारा से जेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी एंड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द बॉडी एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वो जो है स्लोली बॉडी के अंदर रिलीज होती जाएगी। और इस तरह थिक्सोट्रॉपी का जो रोल है वो हमने बायोलॉजिकल सिस्टम पे भी देख लिया। नेक्स्ट जो है वो सस्पेंशंस में देख लेते हैं। Suspensions exist as gel in resting state. Upon shaking, the gel will convert into solution, then reverts back to its gel upon mixing. जब सस्पेंशन हमारे पास कोई सिरप पड़ा होता है तो यूजुअली उसके ऊपर लिखा होता है कि हिला के इस्तेमाल करें, तो वो क्या होता है कि वो पड़ा पड़ा जो होता है वो जो सिरप होता है वो क्या होता है कि जेल की स्टेट में चला जाता है। ठीक है, तो जब हम उसके ऊपर शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं उसको शेक करते हैं तो जो जेल है वो हमारे पास सोल्यूशन फॉर्म में आ जाती है। जब हम मेडिसिन ले लेते हैं, सिरप को ले लेते हैं, उसके बाद दोबारा जो है वो सिरप पड़ा पड़ा जेल स्टेट में चला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एंटी थिक्सोट्रॉपी या नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी। Antithixotropy represents an increase in consistency, high viscosity, rather decrease in consistency in downward curve. The increase in thickness or resistance to flow with increased time of shear observed for magnesia magma. Antithixotropy is flocculated system containing low solid content. Dilatancy system is deflocculated system containing solid contents more than 50%. एंटीथिक्सोट्रॉपी के अंदर अब देखिए जो एंटीथिक्सोट्रॉपी है और जो डायलेटेंसी है दोनों के अंदर क्या हो रहा है कि विस्कोसिटी जो है हमारे पास वो इंक्रीज हो रही है। तो इसलिए इन दोनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि थिक्सोट्रॉपी के अंदर जो हमारे पास सॉलिड कंटेंट है वो 1 से 10% होगा, जबकि डायलेटेंसी के अंदर जो सॉलिड कंटेंट होगा वो मोर देन 50% होगा। Moreover, in anti-thixotropy, the system would be flocculated, while in dilatancy, the system would be deflocculated. Next हमारे पास जो fluid behavior है, that is rheopixy. Rheopixy is a phenomena in which a solution forms a gel more readily when shaken or sheared than allowed to form a gel while the material is kept at rest. यानी कि इसके अंदर हमारे पास मटेरियल सोल्यूशन फॉर्म में होगा, जब हम इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो सोल्यूशन फॉर्म से जेल की फॉर्म में चले जाएगा और ऑन स्टैंडिंग वो दोबारा से सोल्यूशन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो rheopixy should also be not confused with thixotropy, because in thixotropy the middle or equilibrium stage was the gel and was solution, and here the equilibrium stage is gel.
Examples are magnesium magma and clay suspension. In rheobacterial system, the gel is the equilibrium state, while in anti-thixotropic system, the solution is equilibrium state. नेक्स्ट हम देखते हैं कि रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को हम किस तरह डिटर्मिन कर सकते हैं इजीली. Okay, successful determinations and evaluations of rheological properties of any particular system depend mostly on choosing the correct instrument method. अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जो है वो करेक्ट होगा तो उससे क्या होगा कि उसकी विस्कोसिटी, उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम इजीली स्टडी कर पाएंगे और हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगे वो करेक्ट आएंगे और इस तरह हम उनको अप्लाई करेंगे इन आर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस. इंस्ट्रूमेंट्स की भी क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है, यानी कि जिस इंस्ट्रूमेंट से हम किसी भी फ्लूइड की विस्कोसिटी को मेजर करते हैं उसको हम कहेंगे विस्कोमीटर. द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड इज नोन एज विस्कोमीटर. विस्कोमीटर की आगे हम टाइप से लेते हैं तो बेसिकली हमारे पास जो है वो 2 टाइप्स के विस्कोमीटर होते हैं, एक सिंगल पॉइंट या 1 पॉइंट और एक मल्टी पॉइंट या फिर मल्टी पॉइंट. एट ए सिंगल रेट ऑफ शेयर 1 पॉइंट ऑन द कर्व, यानी कि ये विस्कोमीटर सिर्फ हमें 1 पॉइंट दे देते हैं ग्राफ के ऊपर, उसी से हम आगे अपना उसको एक्स्ट्रापोलेट करके ग्राफ ड्रा कर लेते हैं. सो इट्स एप्लीकेशंस जो हैं बेसिकली न्यूटेनियन फ्लूइड्स के ऊपर ही होंगी, क्योंकि न्यूटेनियन फ्लूइड्स ही हमारे पास ऐसे फ्लूइड्स हैं कि अगर हमारे पास एक पॉइंट हो तो हम पूरा ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, बिकॉज उसके अंदर से ओरिजिन से पास करता है तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे. इसके अंदर जो हमारे पास विस्कोमीटर आ जाते हैं डेट आर ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर एंड फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर. मल्टी पॉइंट के अंदर क्या होगा कि ये हमें शेयर के वेरियस रेट्स प्रोवाइड करेगा, रेट्स ऑफ शेयर, सेवरल रेट्स ऑफ शेयर प्रोवाइड करेगा या मैनी पॉइंट्स देगा कर्व के ऊपर. इसके अंदर क्या होगा कि कप एंड कोन विस्कोमीटर होगा और कॉन एंड प्लेट विस्कोमीटर. अच्छा, ये जो विस्कोमीटर्स हैं इनकी एप्लीकेशन जो है हमारे पास न्यूटेनियन और नॉन न्यूटेनियन यानी कि दोनों किस्म के फ्लूइड्स के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं. Here are the 4 viscometers. You can see capillary viscometer, falling sphere viscometer, cup and bulb viscometer, cone and plate viscometer. Single point viscometer provide a single point on rheogram. Extrapolation of a line through this point to the origin will result in complete rheogram. Ostwald viscometer. First of all, the viscosity of a Newtonian liquid can be determined by measuring the time required for the liquid to pass between two mass as it flows by gravity through a vertical capillary tube known as Ostwald viscometer. The time to flow of the liquid under testing is compared with the time required for a liquid of non-viscosity, usually water, to pass between two mass. Okay, so here is the formula. Here is the capillary viscometer. You can see here is U-shaped viscometer and इसके एक एंड से आप लिक्विड को इसके अंदर पास करेंगे और दूसरे साइड से सक करके ये 2 बल्ब जो है इनके अपर पॉइंट तक ले आएंगे. ठीक है, फिर हम इसको छोड़ देंगे ताकि वो इजीली फ्लो करें. एक बल्ब से दूसरे बल्ब तक जो मटेरियल का टाइम होगा हम वो नोट कर लेंगे, यानी कि इट्स टाइम रिक्वायर्ड या टेकन बाय फ्लूइड टू कवर a distance between 2 points in a bulb. So these are the bulbs on capillary viscometer. दोनों के लिए अलग अलग हम टाइम मेजर कर लेंगे. eta 1 and eta 2 are the viscosity of unknown and this are the viscosity of unknown and standard liquids respectively. यानी कि eta 1 की हमें विस्कोसिटी हमें फाइंड करनी है और eta 2 यानी कि वाटर की विस्कोसिटी हमें पता है. उसके बाद B1 जो है डेंसिटी ऑफ अननोन मटेरियल
and due to its density of non-material या fluid. टाइम रिक्वायर्ड हमने मेजर कर लेना है, और ईटा टू की यानी कि नॉन विस्कोसिटी अगर हम वाटर लेते हैं तो उसकी विस्कोसिटी हमें पता होगी कि वो क्या है। फॉलिंग स्फीयर के अंदर क्या होगा, द ट्यूब, so here is the falling sphere viscometer, you can see here is the tube, इसके अंदर जो है ये हम अपना मटेरियल जिसकी विस्कोसिटी हमने मेजर करनी है वो डाल देते हैं, और इसके अंदर एक स्फीयर आपको नज़र आ रहा है गोल सा, इसके अराउंड एक जैकेट है, उसके अंदर वाटर है। वाटर हम इसलिए ऐड करते हैं कि जो इसका टेम्परेचर है वो वाटर के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाए। जब टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो इसको हम इन्वर्ट कर देंगे, इस जैकेट को इन्वर्ट कर देंगे, तो जो स्फीयर है वो फिर अपवर्ड मूव करेगा, और फिर उससे हम मेजर कर लेंगे कि उसकी विस्कोसिटी क्या है। ये कप एंड बॉब विस्कोमीटर है, हेयर इज अ कप एंड हेयर इज अ board, cone and plate viscometer. This is of digital type. Falling sphere viscometer. The sample and ball are placed in the inner glass tube. Inner glass tube के अंदर हम sample को और ball को place कर लेते हैं, and allow to reach temperature equilibrium with the water in surrounding jacket. Constant temperature jacket यानी कि जो जैकेट के अंदर टेम्परेचर है हमारा, उसके साथ हम उसको अलाउ करते हैं कि उनका जो टेम्परेचर है वो इक्विलिब्रियम पर आ जाए। The tube and jacket are then inverted, which effectively places the ball at the top of inner glass tube. ठीक है, जब हम उसको इन्वर्ट करेंगे तो जो बॉल होगी वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। The time for the ball to fall between two masses is accurately measured and repeated several times. जो बॉल का डिस्प्लेसिंग टाइम है 2 पॉइंट्स के दरमियान हम उसको मेजर कर लेंगे, और इस फार्मूला को, इस एक्सपेरिमेंट को हम सेवरल टाइम रिपीट करेंगे। द विस्कोसिटी ऑफ ए न्यूटोनियन लिक्विड इज देन कैलकुलेटेड बाय गिवन फार्मूला। हियर इज द विस्कोसिटी, हियर इज द टाइम जब बॉल जो है वो ऊपर की तरफ 2 पॉइंट्स के दरमियान उसने मूव किया। Where T is the time interval in seconds for the ball to fall between 2 points, and S, B and S of are the specific gravities of the ball and the fluid respectively. ठीक है, at the temperature being used. B is a constant for a particular ball and is supplied by the manufacturer. यानी कि जो B है वो हमारे पास कांस्टेंट है, और जो ये इंस्ट्रूमेंट बनाने वाला यानी कि जो मैन्युफैक्चरर होगा यही हमें बताएगा कि इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। एस बी और एस एफ हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटीज है बॉल की और फ्लूइड की। Multi-point viscometer provide more than one point on rheogram. Drawing the line from point to point will give the rheogram. फर्स्ट वन हमारे पास आ जाते हैं कप एंड बॉब विस्कोमीटर. दिस इज अ मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर एंड बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ रोटेशनल विस्कोमीटर. The sample is placed in the cup and the bob is placed in the cup up to an appropriate height. Consider a cup in your mind and imagine that there is a bob inside the cup hanging. The sample is accommodated between the gap of cup and bob. ठीक है, कप और बॉब के दरमियान जो गैप होगा उसके अंदर हमने अपना सैंपल रख देना, और फिर हम क्या करेंगे, जो कप या बॉब है, ठीक है, इसके अगर फर्दर सेवरल टाइप है कि आइदर हम उसके कप को रोटेट करवा रहे हैं या आइदर हम बॉब को रोटेट करवा के इस मटेरियल के अंदर शेयर प्रोड्यूस करवा रहे हैं। Cup or bob is made to rotate and torque, and the shearing stress from the viscous drag is measured by spring or sensor in the drag of the bob. फार्मूला जो हम इसके लिए यूज करेंगे, eta is equal to kv w over v, where kv is the kinematic viscosity, w is the weight in gram, and v is the rpm यानी कि rates per minute generated by weight w in gram. के भी हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमारे पास आती है कि जब हम इसकी डायनामिक या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी को डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे। Kv is obtained by analyzing material of non-viscosity inequals. Next is
cone and plate discriminate. The sample is placed on at the center of plate. Consider a plate in your mind, and the sample is placed over the plate. When it's raised into position under the cone is driven by variable speed motor, and the sample is sheared in the narrow gap between stationary plate and rotating cone. Rate of shear in RPM is decreased by selected dial, and viscous traction or torque produced on cone. Here you can see the stationary plate. This is the stationary plate, and here is the material placed. Over there is a rotating cone. इसको रोटेट करवा के जो है शेयरिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस करवाया जाता है, और फिर हम इसके अंदर इसकी विस्कोसिटी को मेजर कर लेंगे. Viscosity for Newtonian system can be estimated by the formula given. Here you can see eta is equal to Ct over V, where C is the instrument constant, T is torque reading, V is the speed of cone in RPM यानी कि rates per minute. Plastic viscosity is determined by formula. Okay, यानी कि जो हमारे पास प्लास्टिक मटेरियल है उनके लिए फार्मूला जो है वो मॉडिफाइड हो जाएगा, क्योंकि इनके अंदर क्या आ रही है, यील्ड वैल्यू. ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रियोलॉजी. Manufacturers of medicine and cosmetic creams, pastes, and lotions must be capable of producing products with acceptable consistency and smoothness. जब हम कोई भी मेडिसिनल या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी कंसिस्टेंसी को या उसकी स्मूथनेस को जो है वो एक्सेप्टेबल रेंज में रखा जाए. अगर हम उसकी विस्कोसिटी के अंदर या उसकी कंसिस्टेंसी या स्मूथनेस के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि मटेरियल जो होगा वो ख़राब हो सकता है, उसकी डिटोरिएशन हो सकती है. Rheology is involved in mixing and flow of materials, their packaging into containers, and the removal prior to use, whether this is achieved by pouring from a bottle, extrusion from a tube, or passage through a syringe needle. जितने भी ये पॉइंट्स मैंने पढ़े हैं, वेदर दिस इज अचीव बाय pouring फ्रॉम अ बॉटल, ठीक है, सिरप के अंदर से बॉटल के अंदर से सिरप निकालना, टूथपेस्ट के अंदर से पेस्ट निकालना, सिरिंज के अंदर से जो इंजेक्शन है वो निकालना, ये सब फ्लो से रिलेटेड है, और फ्लो के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रियोलॉजी से रिलेटेड है. सो रियोलॉजी इज ऑल इन्वॉल्व इन flow behavior or flow properties of materials, their packaging, their filling, their pouring, their extrusion, etc. Rheology of a particular product, which can range in consistency from fluid to semi-solid to solid, can affect the patient acceptability, physical stability, and even biological availability. For example, the viscosity has been shown to affect absorption rate of drugs from gastrointestinal tract, यानी कि हमारे जो gastrointestinal tract है वहाँ से जो ड्रग्स की absorption होती है उसके अंदर भी विस्कोसिटी का बहुत बड़ा रोल होता है. इसके अलावा जो पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी होती है या किसी भी ड्रग की फिजिकल स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, ये सब जो है वो रियोलॉजी के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, उनकी फ्लोइंग बिहेवियर के ऊपर, उनकी विस्कसनेस के ऊपर. Rheologic properties of a pharmaceutical system can influence selection of processing equipment used in its manufacturing. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम कौन सा इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज़ जिसको हमने मोटर और पेस्टल के अंदर ग्राइंड करना है, अगर हम उसको मिक्सर के अंदर करेंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है. वो जो ड्रग या हमारा जो पेस्ट होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी अगर हमने उसको मोटर और पेस्टल में करने की बजाय मिक्सर में कर रहे हैं. तो कुछ ड्रग्स या हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनको मिक्सर में मिक्स करना या ग्राइंडर में ग्राइंड करना ज़रूरी होता है. Inappropriate equipment from this perspective may result in undesirable product. अगर हम inappropriate equipment यूज़ करते हैं तो हमें undesirable product मिलता है. Pharmaceutical applications देख लेते हैं. फ्लूइड्स के अंदर mixing, as we have discussed earlier, that how mixing affects
पार्टिकल साइज रिडक्शन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम विद शेयर, यानी कि शेयर अप्लाई करने से हम पार्टिकल के साइज को रिड्यूस करते हैं, जितना हम चाहें उसको रिड्यूस कर सकते हैं. पार्टिकल पैसेज थ्रू ऑर्टिसेस इंक्लूडिंग pouring, पैकेजिंग इन बॉटल्स, fluid transfer including pumping and flow through pipes, physical stability of dispersed system. These all points we have discussed. Quasi solids. Quasi solids ऐसे solids होते हैं कि जो माइक्रोस्कोपिकली डिसअरेंज्ड होते हैं. Spreading and adherence on skin, removal from jars or extrusion from tube, capacity of solid to mix with miscible liquids, release of drug from this. These points are also have discussed कि किस तरह जो है वो adherence spreading को affect करती है rheological properties. और अगर 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 हम किसी बॉटल के अंदर कोई पेस्ट डालते हैं तो क्या उसकी एक्सट्रूजन ईजी होती? बिल्कुल नहीं. इसीलिए जो टूथपेस्ट के लिए जो पैकेजिंग है वो टूथपेस्ट के लिए ही डिज़ाइन की गई है. अगर उसके अंदर हम सिरप डालेंगे तो फिर फ्लो एबिलिटी उसकी ज़्यादा होने की वजह से वो क्या हो जाएगा कि वो फ्लो करके बाहर गिर जाएगा सारा. Here you can say that how rheology affects the packaging. Solids के अंदर देखते हैं कि फ्लो ऑफ पाउडर्स फ्रॉम होपर्स एंड इनटू डाई कैविटीज इन टैबलेटिंग और इन कैप्सूल्स ड्यूरिंग इंकैप्सुलेशन. जब हम किसी भी टैबलेट की इंकैप्सुलेशन करते हैं या टैबलेट कोटिंग करते हैं उसके अंदर भी फ्लो प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है. पैकेजिंग ऑफ पाउडर्ड और ग्रैन्युलर सॉलिड्स, अगेन द सेम पॉइंट. नेक्स्ट इज द प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इक्विपमेंट एंड प्रोसेसिंग एफिशिएंसी. So alhamdulillah, it's completed now.